Good morning children. Myself Sarita Chaudhary, PGT Science teacher from St. Joseph Public School Tom. So students, in today's video we are going to cover the last topic of chapter number 6, Physical and Chemical Changes. The topic is crystallization. Sea water is very salty that cannot be consumed by human beings. It is salty because of presence of excess of salt in it. And in 6th class, students, you have learnt already that how sea salt can be obtained from that sea water. It is obtained by the process of evaporation. So evaporation में क्या होता है? When near in the coastal areas, some seashore areas, some pits are being dig up by the men. कुछ pits बड़े बड़े गड्ढे खोदते हैं and sea water is poured into those pits. And then when sunlight that falls on the surface of water, sea water, water gets evaporated because the water vapor is the purest form of matter. बिल्कुल प्योर होती है, बहुत लाइट वेटेड होती है, तो सिर्फ वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है. Impurities or salt being heavier, they cannot evaporate. वो evaporate नहीं हो सकते. So salt will remain in those pits in the form of some small crystals. So when the salt which is obtained by this process of evaporation, that is generally of not clear color. उसका color बिल्कुल clear नहीं होता, crystals बिल्कुल clear नहीं होते, because of presence of a lot of impurities which was present in the sea water. सी वाटर में सॉल्ट और वाटर के अलावा कुछ बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट रहती हैं, जिनकी वजह से सिर्फ वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ. ऑल दोज इम्प्योरिटीज दे रिमेन्ड अलोंग विद दी सॉल्ट. तो वो सॉल्ट कैसा हुआ? इम्प्योर फॉर्म में हुआ. एंड द क्रिस्टल्स विच आर फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस, दे आर आल्सो वेरी स्मॉल इन साइज. इन क्रिस्टल्स का साइज भी बहुत छोटा होता है. What the crystals are? Crystals are the solid form of any matter having flat surfaces, right? So, is there any method by which we can obtain the big size of crystals instead of smaller one, and we can obtain the purest form of matter? कि हम pure form obtain कर सके matter की? So the answer is yes. This process is termed as crystallization. So what the crystallization? It is a process to obtain the pure substances from the impure substances. किसी impure substance से pure substances, pure salts obtain करने का जो process है, that is called as crystallization. How this crystallization process is being done? Let's study that part also. Students, for the crystallization process, first of all, we need to make a saturated solution. क्या होता है saturated solution? उसको समझते हैं अच्छे से. We are taking one beaker. हमने एक beaker use किया, उसमें से we are using the 50 ml of water. उसमें हमने 50 ml water pour किया. And then that water, that beaker along with the water is kept on a burner. उसको हमने किसी flame के ऊपर रख दिया, फ्लेम को ऑन कर दिया. एंड वी आर एडिंग सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन इट. हमने कॉमन सॉल्ट जो था, जो इम्प्योर फॉर्म में कॉमन सॉल्ट है, उसी को हमने उसके अंदर इंसर्ट कर दिया. कीप ऑन स्टिरिंग इट. उसको हम डिसॉल्व करते रहेंगे प्रॉपरली, दैट विल गेट डिसॉल्व. देन विल एड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन दैट सेम सॉल्यूशन. अभी जो मिक्सचर बना था उसी में हम और सॉल्ट को ऐड करेंगे, कंटिन्यूस स्टिक करेंगे, दैट विल आल्सो गेट डिसॉल्व. वो भी डिसॉल्व हो जाएगा. एंड वी आर सपोज टू ऐड इम्प्योर सॉल्ट इन दैट मिक्सचर टिल द टाइम व्हेन दैट मिक्सचर रीचेस टू अ सिचुएशन वेयर नो मोर सॉल्ट कैन बी एडेड इन दैट मिक्सचर. हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि 50 ml ऑफ वाटर के अंदर से वी कुड डिसॉल्व ओनली 5 स्पून और 6 स्पून ऑफ इम्प्योर सॉल्ट. सिर्फ इतना हम डिसॉल्व कर पाए. इससे ज्यादा जब हम डिसॉल्व करते वो डिसॉल्व वाटर के अंदर नहीं हो पा रहा, बिकॉज किसी लिक्विड की भी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि वो कितना सॉलिड को या किसी सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है. तो हमने बात की कि इसके अंदर हम 6 और 7 स्पून से वी आर टेकिंग हियर 7 स्पून ऑफ इम्प्योर सॉल्ट हमने ऐड किया, और ज्यादा सॉल्ट उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज saturated solution. So what is a saturated solution?
a solution in which no more solute can be dissolved, जिसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते, जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी किसी सॉल्यूट को डिजोल्व करने की, that have been dissolved in that, so that solution is called as saturated solution. तो हमने एक saturated solution प्रिपेयर कर लिया of the common salt, impure common salt and water. Now what we are next supposed to do? We need to strain it. हम इसको filter paper से strain कर लेंगे. तो क्या होगा? All the insoluble impurities present in that solution, in that mixture, they will remain over the filter paper in the form of residue. वो ऊपर रह जाएगा filter paper के ऊपर residue के form में, and जो नीचे clear filter होके आ जाता है, filtrate जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या present रहेगा? That will only contain pure salt and water. सिर्फ वो pure salt और water का ही mixture है. The next step is let it get cooled down for 24 hours. हमने 24 hours के लिए उसको cool होने के लिए छोड़ दिया mixture को. After 24 hours, what we'll observe? We will see there will be the formation of some huge sized crystals of common salt. वहाँ पे common salt के कुछ huge size के crystals का formation हो जाएगा. Those crystals can be separated from that mixture by the decantation process. या तो हम ऊपर वाले वाटर को पोर कर देंगे अनदर कंटेनर के अंदर, नीचे क्रिस्टल्स बच जाएंगे, और विद द हेल्प ऑफ अ टोंग दोज सॉल्ट क्रिस्टल्स कैन बी टेकन आउट फ्रॉम दैट वाटर. उसमें से हम बाहर भी निकाल सकते हैं. सो ये जो प्रोसेस हमने पूरा फॉलो किया है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. और इस प्रोसेस का व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द पर्पस टू परफॉर्म दिस प्रोसेस? द मेन रीजन इज to obtain pure salt from the impure salt. हम impure matter से pure matter यहाँ पे obtain कर सकते हैं. There are a lot of other examples of crystallization also. हम water के अंदर instead of using salt we can add copper sulfate crystals also. तो water के अंदर तब तक copper sulfate को dissolve करते रहेंगे जब तक वो उसके अंदर maximum dissolve नहीं हो जाता, maximum capacity तक. तो हमें क्या मिल जाएगा? We will obtain a saturated solution. उसको जब हम हीट देंगे, वार्म अप करेंगे, तो क्या हो जाएगा? और ज्यादा सॉल्यूट उसमें हम डिसॉल्व कर पा रहे हैं, बिकॉज जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है. चिल्ड वाटर में हम कम शुगर सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकते हैं, बट वार्म वाटर के अंदर ज्यादा शुगर और सॉल्ट डिसॉल्व हो सकती है. तो उसको वार्म करके हमने उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया. उसके बाद उसको फिल्टर पेपर से स्ट्रेन कर लेंगे, इम्प्योरिटीज फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी, एंड देन लास्ट विल रिमेन, लेट इट रिमेन टू गेट कूल डाउन. और जैसे इसकी कूलिंग होगी तो जो प्योर कॉपर सल्फेट है उसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स का वी कैन ऑब्टेन देम ओवर देयर. फ्रेंड्स, बेसिक जो एग्जांपल आपने देखा होगा अपने घर पे भी क्रिस्टलाइजेशन का, that is this process is frequently used in festival seasons by our mothers at home. Why and how? कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे क्यों यूज करते हैं? जब भी वो शुगर सिरप प्रिपेयर करती हैं, चाशनी जब बनाते हैं, तो चाशनी बनाने के लिए, शुगर सिरप बनाने के लिए what she used to take, she takes small amount of water and then she add double of amount of that water, sugar. जितना अगर मान लो 1 cup of sugar water है तो उसमें 2 cups of sugar को पानी को गर्म करते हैं ताकि उसमें ज्यादा शुगर डिसॉल्व हो सके. उतनी डिसॉल्व कर दी प्रॉपरली, एंड जो शक्कर पारे बनते हैं ना, स्वीट, राइट, तो उनके ऊपर शुगर सिरप को पोर कर देते हैं. दैट टाइम दैट शुगर सिरप इट गिव्स द ट्रांसपेरेंट, बहुत स्टिकी सी अपीयरेंस देता है. बट जब वो कूल डाउन होते हैं तो वी कैन सी अ व्हाइट कलर्ड कोटिंग ऑफ शुगर क्रिस्टल्स ओवर दोज शक्कर पारास, राइट. So that is also the best example of crystallization. So that's all for today's video. We learned about the crystallization process. What is its benefit? इसको क्यों use किया जाता है? So that's all. Thanks for watching.